Good morning, students. Lesson number 16, Light. Open your textbook, page number 205. Activity 16.7. Get a plane mirror of suitable size. क्या करना है हमें? प्लेन मिरर लेना है. Place it in a bowl. जैसे कि यहाँ पे हमें 16.13 में दिखाई दे रहा है वैसे. Fill the bowl with water. क्या करना है हमें? पानी से वो भरना है. Put these arrangements near a window. विंडो के पास. Such that direction sunlight falls on the mirror. Adjust and position of the bowl such that the reflected light from the mirror falls on a wall. फिर हमें उसके वो देखना है तो वो क्या होगा, जैसे कि हमें 16.3 पे दिखाई दे रहा है वैसे. Fix a sheet of white paper on it. Reflected light will be seen to have many colors. How can you explain this? The mirror and water from the bricks of the light into its colors, as you learn in class. हमने आगे के क्लास में सीखा है 7. Splitting of light into the colors is known as the diffractions of light. Rainbow is a natural phenomena showing presence. इसमें क्या किया है, मिरर लिया है, फिर उसमें पानी भरा है, फिर ऐसे हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि वो विंडो के सामने फ्रेश लाइट होती है वैसे. देखो इसमें दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंट कलर्स, मेनी कलर्स. अभी 16.14 में जैसे दिखाई दे रहा है कि बिहाइंड द कॉर्नर्स वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रंक्स कॉल्ड इज आइज. In the eyes, there is a small opening called the pupil. The size of pupil is controlled by its eyes. The eyes is the parts of that eyes which gives it its distinctive color. When we say that the person has green eyes, we refer actually to the color of the eyes. The controls the amount of light entering into the eyes. Let us see how. कैसे होता है वो, जैसे कि ऐसे प्यूपिल है, उसमें कभी भी हम देख सकते हैं ना कि उसकी आइरिस, जैसे कि हम कभी भी ऐसे देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी भी होती है कि किसी भी की आँखों ग्रीन कलर की होती है ना, जैसे कि कैलिजा मस्कुलर्स, फिर आइरिस, लेंस, कॉर्नर्स, रेटिन्स एंड ऑप्टिक नर्व्स, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है वैसे. For this activity, never use a laser torch. Activity 16.8. Look into your friend's eyes. Observe the size of the pupil. Throw light on her eye with a torch. Observe the pupil now. Switch off a torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of the pupil? In which case was the pupil larger? Why do you think it was so? In which case do you need to allow more light in the eye when the light in the dim or bright? Behind the pupil of the eyes is the lens which is thicker and the center. What kind of a lens is the thicker and the center? Vishal, what do you learn about lens in class? जिसके हमने आगे की क्लास में वो सभी हमें सीखा है. On the lower canal or retina, 16.4 में जिसे मैं दिखा था वैसे. Retina contains several nerve cells. Sensitive felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cells. The cones which are sensitive to bright light, and second are rods which are sensitive to dim light. Beside cones, a sense color, that the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no variation is possible at that spot. This is the called of blind spot. Its experience can be demonstrated as follows. Activity 16.9. Make a round mark and a cross on a sheet paper with a spot on the right of the cross.
16.15 दिखाई दे रहा है कि एक साइड हमें राउंड मार्क्स और क्रॉस मार्क करने हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स में 6.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना है 6.8 सेंटीमीटर। जैसे होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आइस, क्या करना है हमें, वो अपनी आर्म से हमें जितना हमें वो करना है। क्लोज योर लेफ्ट आइज, क्या करना है हमें, लेफ्ट आइज बंद करनी है। क्लोज योर लेफ्ट आइज। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, क्या करना है हमें, क्रॉस को हमें देखना है। जैसे इसमें कहा गया है वैसे कर रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस। व्हाट डू यू फाइंड, क्या हमें वो धीमे धीमे दिखा दे, वो हमें क्या दिखाया है वो हमें देखना है। डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट। नाउ क्लोज योर राइट आइज, फिर हमें राउंड मार्क्स देखना है तो फिर हमें राइट आइज बंद करनी है। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। डज द क्रॉस डिसअपियर। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और अ राउंड मार्क शो दैट देयर इज अ पॉइंट on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. The impressions of an image does not vanish immediately from the retina, but sits there for about 16th one या फिर 16th for a second. So if a still image of the moving object are flashed on the eyes at the right faster in 16 per second, then the eye perceives this object as moving. Now 16.10, get a square piece of cardboard of size 16.8 cm. कार्डबोर्ड लेना है 16 या फिर 8 सेंटीमीटर। मेक 2 होल्स एट शोन इन अ फिगर। 16.6 में दिखाई दे रहा है वैसे 2 होल्स करने हैं। थ्रेड अ स्ट्रिंग तो 2 होल्स, उसमें क्या करना है, थ्रेड हमें लगाना है। ड्रॉ पेस्ट अ कैच ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, एक साइड पे हमें क्या करना है, कैच ड्रॉ करना है ऑफ द कार्डबोर्ड एंड द बर्ड ऑन अदर साइड, एक कार्ड पे कैच और एक में बर्ड्स। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्री रिप्लाइडली डू यू सी द बर्ड इन द कैच। फिर हमें वो करना है तो हम क्या देखते हैं कि जो कैच है उसमें बर्ड आ गया है। द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ spent picture in the proper sequence. They are made to move across the eyes actually at the rate of 24 pictures per second, faster than a 60 per second. So we see a moving a picture. फिर हमें एक साइड पे क्या ड्रॉ किया था, कैच, और एक साइड पे क्या ड्रॉ किया था, बर्ड। फिर हमें उस ऐसे मूविंग किया तो हमें क्या लगा कि वो कैच के अंदर वो बर्ड आ गया है। Natural has provided eyes with eyelids to protect from any object earthing the eye. Eyelids also shoot out light when not required. Eyes is such a wonderful instrument that a normal can be distant object as well near object clearly. क्या है, एक आइस हमारी बहुत अच्छे से कोई भी ऐसी चीज़ देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आइज कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसली वेरियस विथ एज। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जैसे कि हमें कोई ऐसे अपने आई से हम वो दे सकते हैं और वो हमारी एज के साथ वो ऐसे हो हम उसके एज के साथ वो हमें ऐसे देख सकते हैं वो, और हमें वो रीड करने के लिए 25 सेंटीमीटर के जैसे। सम पर्सन्स कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कभी हम कोई ऐसी हमारी सब एज हमारी बढ़ जाती है तो पहले हम ऐसे रीड कर सकते थे 25 सेंटीमीटर तक, और कभी और जब भी एज हो जाती है तो हम कभी ऐसे रीड कर सकते हैं। वो हमें थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई देता है जो हमें रीड करते हैं, और जब हमारे एज हो जाती तब।
On the other hand, some persons cannot see near object clearly, but they can see distant object quite well. With suitable corrective lens, these defects of the eyes can be corrected. है ना। फिर हमें कोई ऐसे बहुत दूर का या फिर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम समटाइम्स पर्टिकुलर इन ओल्ड एज, क्या है, ओल्ड एज होती है तो हमें वो कुछ डार्क डार्क जैसे दिखाई देता है। या फिर आइस लाइट बिकम्स अ foggy, इट इज ड्यू टू द आइस लेंस बिकम अ cloudy when it happens. Person are said to have a contract. There is a loss of variation, sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens in remove and a new artificial lens in instead. Modern technology has made this producer simple and suffer. तो हमें कभी भी ऐसे आँख में कुछ ऐसे रीड नहीं हो रहा है या फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लेंस या फिर चश्मे का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें बोला गया है। केयर्स ऑफ आइज, it is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Have a regular checkup. क्या है, हमें कोई भी ऐसे आइस के बारे में कोई भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए, आइस के जो स्पेशलिस्ट है उससे हमें दिखाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। इफ़ एडवाइज्ड यूज़ अ सूटेबल स्पेक्टेक लेंस, या फिर हमें कुछ ऐसे रीडिंग में दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कुछ और है तो हमें आइस स्पेशलिस्ट के बारे में देखना चाहिए और हमारे जो आँखों में शूट होता है वैसे लेंस या फिर कुछ पहनना चाहिए। टू लिटल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइस। इन्फ्लुएंस लाइट causes eye strains and it sends too much light like that of a sun are powerful. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइस केयर्स ऑफ आइस। हमें कभी भी अपनी आइस के बारे में केयरलेस नहीं होने चाहिए। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें आई स्पेशलिस्ट के में बताना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए आइस के बारे में। यहाँ पे आइस के बारे में बताया गया था, केयर्स ऑफ आइस। ओके, आई होप आपको ये मैंने आज जितना भी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें से जो आपको वर्कबुक में है क्वेश्चंस या फिर कुछ भी वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।